starvation. Okay, so now see here, starvation means what? Uh, the example is given here. Okay, suppose a transaction T2 has shared mode lock on data item. Suppose means transaction T2 has applied the shared lock on that data item. For example, it is Q. Okay, then another transaction T1 will request an exclusive lock on that same data item. Will it get it? Can you tell me? Can anyone? T2 has already applied a shared lock on data item Q, and now T1 is requesting exclusive lock on that same data item Q. Can T1 will get it? Anyone? No. Why? Because shared and exclusive is false. We had seen that compatible matrix. Only shared is true, or only shared is compatible. Shared is compatible means if T2 has already, suppose if T2 has already applied the shared lock, and T1 or T4 or any transaction is requesting the shared lock, shared means shared, then it will get it because shared is compatible. Okay, we had seen this compatible matrix already here. See here, this is the compatible matrix that shared is true. Other shared exclusive shared, or exclusive is false. Okay, so means here, so means T2 has already applied the shared lock on the data item Q, suppose. Then another transaction T1 will request exclusive mode lock on that same data item. It will not get it. It will request, but it will not get it. Okay. Then clearly T1 has to wait for T2 to release the shared mode lock. T1 has to wait. T1 has to wait for T2 to release the lock. Okay. But before that means meanwhile a transaction T3 may request a shared mode lock on the same data item. Now T3 is requesting. T2 has already applied shared lock. T1 is waiting for T2. But now T3 has request the shared lock. Now T3 will get it on the same data item. Okay, but T3 will get it. Why? Because shared is true. T2 has already applied the shared lock, and T3 is also requesting for the shared lock, and shared is true. So T3 will get it. Okay, because the lock request is compatible with the lock granted to T2. So T3 may be granted the shared lock, means T3 को भी मिलेगा. At this point, T2 may release the lock. अब T2 का काम हो जाएगा. T2 may release the lock, but still T1 has to wait for T3 to finish. अब T2 ने रिलीज कर दिया, but T3 है वहां पे. T3 has got that lock. Okay, so now T1 has to wait for T3. Okay, but again there may be a new transaction T4 request a shared lock. अब फिर से कोई नया transaction T4 आया, उसने भी shared lock ही request किया. Okay, on the same data item and is granted the lock before T3 released it. अब उसको भी मिल जाएगा because shared is compatible. Okay, so 10 number का point देखो अभी. But T1 never gets the exclusive mode lock on the data item. The transaction T1 may never make a progress and it is said to be starvation. Means कैसा है in short? See here, first of all T2 has applied the shared mode lock on the data item Q, for example. Then T1 will request for exclusive mode lock, but T1 will not get that lock because shared and exclusive is not compatible. After that T3 will come and he will request for the shared lock, so he will get it. It will get T2 and T3 will get it because T2 ने already उस पे कौन सा लॉक लगाया था? shared. T1 वेट कर रहा है, अब T3 ने रिक्वेस्ट किया shared लॉक, so T3 को मिलेगा because shared is compatible. उसके बाद T4 आएगा, अब T2 रिलीज कर देगा लॉक, but T3 है ऑलरेडी, T3 has already applied the shared lock. अब T4 आएगा, T4 भी shared lock के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसको भी मिल जाएगा. मीन्स ऐसे shared lock की रिक्वेस्ट करने वाले बहुत सारे अगर ट्रांजैक्शंस आते रहेंगे तो क्या होगा? T1 को एग्जीक्यूशन का चांस ही नहीं मिलेगा, या वो लॉक जो उसको जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टारवेशन.
Okay, so this is not, this is actually example, this is not the what you can say definition, exact definition of starvation. Okay, so we have to see it, but are you getting the concept? मीन्स उसको चांस ही नहीं मिल रहा है, बाकी के सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं जिनको शेयर्ड मोड लॉक चाहिए वो आ रहे हैं, और इसको T1 को एक्सक्लूसिव चाहिए तो उसका नंबर ही नहीं लग रहा है, उसको एग्जीक्यूशन का चांस नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज स्टारवेशन. ओके, now the next point is two phase locking protocol. Now what is this two phase locking protocol? See here, before starvation we had seen this locking and unlocking. Okay, before starvation we had seen this lock and unlock. Okay, आपने सॉल्व करके देखा क्या? ये मैंने बताया था, तो उसको सॉल्व करके देखो, वैल्यूज पुट अप करके देखो. ओके, सो सी हियर, ये लॉक और अनलॉक हमने देखा था. ओके, lock and unlock, this is concurrent transaction, but after that we had seen that it is not correct or it is not serializable. Why? Because these values we are getting are different. 50-50 हमको कौन सी चाहिए थी? 50-80 या 70-50 ऐसी चाहिए थी जो हमने ऊपर देखा था. ओके, मीन्स ये कंकरेंट शेड्यूल जो है वो करेक्ट नहीं मिल रहा आफ्टर लॉकिंग एंड यूजिंग अनलॉकिंग, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग. ओके, सो वी हैड सीन दैट टू गारंटी द सीरियलाइजेबिलिटी, यानी जो भी कोई ट्रांजैक्शन कंकरेंटली एग्जीक्यूट होगा वो सीरियलाइजेबल ही मिलना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट therefore we must use a protocol known as two phase locking protocol. हमको two phase locking protocol use करना है. Okay, so now what is locking, two phase locking protocol? The two phase locking protocol, the two phase locking protocol ensures serializability, means उससे हमको guaranteed serializability मिलती है. Serializability मिलती है means what? जो भी concurrent schedule है वो correctly ही work करता है, serial schedule जैसा ही work करता है. Okay, so this protocol requires that each transaction issues lock and unlock request in two phases. So see here, first one is the growing phase. First one is the growing phase. In this phase, the transaction may obtain locks but may not release the lock. Means in growing phase, they can only obtain the lock but they cannot release the lock. Okay, and in shrinking phase, in this phase, the transaction may release the locks but they cannot obtain the new locks. Okay, so it means in shrinking phase they can release the lock after completing their work, they can release the lock but they cannot obtain the new lock. Okay, at the start the transaction is in the growing phase, ये ध्यान में रखो for MCQ. At the start the transaction is in the growing phase, means by default it is in the growing phase. So means growing phase में क्या है कि आप लॉक को सिर्फ एक्वायर कर सकते हो, यानी लॉक लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. ओके, और श्रिंकिंग फेज में क्या है, आप सिर्फ लॉक रिलीज कर सकते हो. ओके, सो टू फेज, व्हेन देयर इज अ वर्ड टू फेज यू मस्ट रिमेंबर ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज, दो फेजेस है. ओके, definition of lock point: the point in the schedule where the transaction has obtained its final lock, that is end of growing phase, is called as lock point. That we will see in the example. Okay, so what you have to remember just here, the point in the schedule where the transaction has obtained its final lock, उसका final lock जहाँ पे लगता है, that is called as lock point. So that we will see in the example. See here, now conversion of above schedule into two phase locking protocol. ऊपर वाला जो schedule था ना हमारा, देखो ऊपर हमने क्या किया था. See here, ये सिंपल वाला T1 T2. What we are doing here, see here, we are applying shared lock on Y, then read Y, unlock Y. मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऊपर वाला है प्रीवियस वाला कि shared lock Y पे shared lock अप्लाई करेंगे. Why? Because we want to only read the value of Y. हेलो, किसका माइक ऑन है? Okay, so now here as we have to only read the Y, so we will apply the shared lock on Y, read that Y and unlock it. यानी काम होने के बाद तुरंत हम यहाँ पे अनलॉक कर रहे हैं. ओके,
उसके बाद लॉक वी आर अप्लाइंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डेटा आइटम x, देन रीड x, x इक्वल टू x प्लस y, राइट x, अनलॉक x। यानी जैसे हमारा काम हो जाएगा तुरंत हम उसको अनलॉक कर रहे। ओके, वैसे यहाँ पे है सेम, रीड कर रहे शेयर्ड लॉक, वी आर अप्लाइंग शेयर्ड लॉक ऑन द x, रीड x, अनलॉक x। और नीचे वी आर अप्लाइंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन y, we will do all the calculations, read x y equal to x plus y, write y and unlock। यानी काम होने के बाद तुरंत हम उसको अनलॉक कर दे। ओके, now same transaction we will convert into two phase locking protocol। okay, so see here only the locking position is we are changing here। okay, only the locking and unlocking position we are changing here in the growing and shrinking phase। okay, so see here what we will do, we will apply shared lock on y, we will read the y, read करेंगे। अब यहाँ पे हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे, अब हमको क्या करना है, नीचे और भी जो हमको लॉकिंग अप्लाई करना है वो पहले लॉक लगा लेना है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई लॉक एक्स ऑन एक्स डेटा आइटम। ओके, मींस पहले हमने क्या किया, देखो y पे शेयर्ड लॉक अप्लाई किया, देन y को रीड कर लिया। अभी अनलॉक नहीं करेंगे y को, क्योंकि हम ग्रोइंग फेज में उसको अनलॉक नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, उसी ट्रांजैक्शन में नीचे कहीं जो जिस डेटा आइटम को हमको लॉक करना है उसको लॉक अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया लॉक एक्स इन ब्रैकेट एक्स, मींस एक्स डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई किया। और किसी को हमको लॉक करना है क्या इस ट्रांजैक्शन में? नहीं, अब हमारे सारे लॉक अप्लाई हो गए। सो सी हियर दिस लॉक अंडरस्कोर एक्स इन ब्रैकेट एक्स, दिस इज कॉल्ड एज लॉक पॉइंट। ओके, बिकॉज दिस इज द लास्ट लॉक इन द ट्रांजैक्शन T1। ओके, so this is the last lock on in the transaction T1। so here lock underscore x in bracket x is the lock point। means यहाँ तक था हमारा growing phase, यहाँ तक था हमारा growing phase। what we can do in the growing phase, कि हम सिर्फ lock apply कर सकते हैं। okay, so ये हमारा growing phase हो गया। okay, अब हम क्या करेंगे, read y का हमारा काम हो चुका है, read y का, अब हम पहले उसको unlock कर देंगे। ओके, रीड वाई का काम हमारा हो चुका है। नाउ और श्रिंकिंग फेज विल स्टार्ट। ग्रोइंग फेज खत्म हो गया, अब श्रिंकिंग फेज स्टार्ट होगा। श्रिंकिंग फेज में व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली रिलीज द लॉक। सो नाउ द वर्क ऑफ वाई वी हैव कंप्लीटेड। वाई को हमको रीड करना था, हमने रीड कर लिया है। सो वी विल अनलॉक इट हियर, अनलॉक करेंगे। उसके बाद एक्सक्लूसिव लॉक एक्स पे हमने ऑलरेडी ऊपर लगा लिया है, अब हम उसको सिर्फ उसके कैलकुलेशंस करेंगे। रीड एक्स, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट x। अब काम होने के बाद अनलॉक करेंगे। गेटिंग? सिर्फ हियर वी आर जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लॉक एंड अनलॉक। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेम हियर फॉर T2। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन शेयर्ड लॉक ऑन x। सो लॉक अंडरस्कोर sx, उसको रीड करना है, रीड कर लेंगे। अब उसको अनलॉक यहाँ पे हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ग्रोइंग फेज। ओके, सो नाउ T2 में हमको नीचे कौन से डेटा आइटम पे लॉक करना है? y पे। वी हैव टू अप्लाई द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन y। तो उस y पे अब हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर देंगे। मींस ग्रोइंग फेज में आपको उस ट्रांजैक्शन में जितने डेटा आइटम्स पे लॉक अप्लाई करना है उसको आपको अप्लाई करके रख देना है। ओके, सो नाउ हियर ग्रोइंग फेज इज कंप्लीटेड, नाउ श्रिंकिंग फेज विल स्टार्ट। नाउ आवर वर्क ऑन डेटा आइटम x इज कंप्लीटेड। x का काम हो गया हमारा, रीड x था, रीड x हो गया। नाउ वी विल अनलॉक इट। सो अनलॉक x। ओके, उसको अनलॉक कर दिया। अब रीड y, बाकी के इंस्ट्रक्शन। अब y को हमने ऊपर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया है, ऑलरेडी लगा दिया है। अब हम सिर्फ कैलकुलेशंस करेंगे। रीड y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट y, अनलॉक y। अब काम होने के बाद अनलॉक करेंगे। ओके, सो हियर वी हैव जस्ट चेंज द position of the lock and unlock in the two-phase locking protocol। Now see here, consider the following concurrent schedule using 2PL। अब वही जो ऊपर वाला जो concurrent schedule था जिसका आंसर गलत आ रहा था लॉक अनलॉक करने के बाद भी, see here, okay, ये तो इसको हम अब 2PL से अप्लाई करेंगे। अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शेयर्ड लॉक ऑन y, रीड y, ऊपर पे अनलॉक y तक था, हमने ब्रेक रखा था ना उसको, अनलॉक y के बाद उसको ब्रेक किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। लॉक अंडरस्कोर s ऑन y, रीड y, लॉक x इन ब्रैकेट x, अनलॉक y।
ओके, अब यहाँ पे ऊपर कहां तक किया था हमने, राइट, अब सेकेंड वाला पूरा ही था, तब ऊपर के इसमें भी सेकेंड वाला पूरा T2 हमने पूरा कर लिया था यहाँ पे। ओके, तो इसको भी हम पूरा कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे अब नीचे T1 का फिर से जो रिमेनिंग पार्ट, रीड x इक्वल टू x प्लस वाई, राइट x, अनलॉक x, ये करेंगे। नाउ दस इट इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली सीरियलाइजेबल शेड्यूल मिलेगा। सीरियलाइजेबल शेड्यूल मीन्स व्हाट, इट वर्क्स लाइक अ सीरियल शेड्यूल, it is concurrent schedule but it works like a serial schedule, means हमको आंसर करेक्ट मिलेगा, that is called a serializable schedule. Okay, so आप उसको अभी वैल्यूज यहाँ पे भी पुटअप करके देखो। ओके, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जब जब वो अनलॉक होगा तभी जाके दूसरा ट्रांजैक्शन उस पे लॉक अप्लाई कर पाएगा, एंड इफ इट इज कंपैटिबल। ओके, अनलॉक जब अब अनलॉक होगा, ये सपोज अब y यहाँ पे जब अनलॉक होगा T1 में, देखो y जब अनलॉक होगा तब भी ये y की वैल्यू रीड कर पाएगा। गेटिंग, मीन्स बताने का मीनिंग क्या है, इन शॉर्ट वो सीरियली ही वर्क करेगा। ओके, सो आप वहां पे वैल्यूज अप्लाई करके देखो। सो द ड्रॉबैक ऑफ 2PL इज दैट इट हैज कैस्केडिंग रोलबैक। लेकिन 2PL का प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि इट हैज कैस्केडिंग रोलबैक। कैस्केडिंग यानी एक रोलबैक हो तो दूसरा, दूसरा रोलबैक हो तो तीसरा, ये होगा उसमें। सो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड विद द MCQ। द कैस्केडिंग रोलबैक कैन बी अवॉइडेड बाय वेरिएशंस ऑफ 2PL। अब ये जो कैस्केडिंग रोलबैक है ये भी अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द 2PL, by using the variations of 2PL. Now we will see the variations of 2PL. Okay. 2PL and its variations. 2PL means two phase locking protocol. PL means phase locking protocol. There are number of variations of 2PL. First one is conservative 2PL. अब इस पे भी MCQ रहता है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि किस पे लॉक अप्लाई करना है। ओके, सो also called as static 2PL. Conservative 2PL is also called as a static 2PL, which requires transaction to lock all items it accesses before the transaction begins execution by pre-declaring its read set and write set. तो इसका कहना क्या है कि कंजर्वेटिव 2PL में क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है कि उसको ट्रांजैक्शन को पहले से ही सारे डेटा आइटम्स जो उसको आगे लगने वाले हैं वो पहले से ही लॉक करके रखनी चाहिए। अब हर बार तो हमको पहले से पता नहीं रहता कि हमको आगे जाके कौन से लॉक लगने वाले हैं। ओके, सो सी हियर व्हाट इज गिवन, व्हिच 2PL which requires transaction to lock all items it accesses before the transaction begin execution by pre-declaring its read set and write set. पहले से उसको लॉक करके रखना है जो उसको रीड करने हैं और जो राइट करने हैं। रीड एंड राइट सेट मींस जो रीड करने हैं वो सेट और राइट करना है वो सेट। Read set of transaction is the set of all items that the transaction reads, and write set of a transaction is the set of all items that the transaction writes. If any of the pre-declared items needed can't be locked, the transaction doesn't lock any item. If any of the pre-declared items needed can't be locked, the transaction doesn't lock any item. अगर उसने उसको जो सारे के सारे चाहिए उसमें से उसने एक भी डेटा आइटम को अगर लॉक नहीं किया सपोज, तो किसी को भी लॉक नहीं मिलेगा। ओके, किसी भी डेटा आइटम को लॉक नहीं मिलेगा। सो इंस्टेड इट वेट्स until all the items are available for the locking. So conservative 2PL is a deadlock free protocol. अब ये भी इसमें सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि conservative 2PL is a deadlock free protocol. ये छोटे छोटे सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इन शॉर्ट इसमें याद क्या रखना है आपको, विच रिक्वायर्स ट्रांजैक्शन टू लॉक ऑल आइटम्स, इसको अंडरलाइन करना है हमको कि विच रिक्वायर्स ट्रांजैक्शन टू लॉक ऑल आइटम्स, सारे ही आइटम्स को उसको लॉक करना है जो उसको आगे लगने वाले हैं। ओके, अगर एक भी डेटा आइटम को
उसको लॉक नहीं मिल रहा है, अगर इफ इट इज इनकम्पैटिबल, उसको लॉक नहीं मिल रहा है, तो उसको वेट करना पड़ेगा कि जब तक उस एक डेटा आइटम को लॉक मिलेगा तब जाके मैं फिर सारे डेटा आइटम को लॉक लगाऊंगा, लाइक दैट। गेटिंग? कि उसके रूल ही है कि उसको T1 में जो लगने वाले सारे डेटा आइटम्स, वो सारे डेटा आइटम्स को उसको एक साथ ही लॉक लगाना पड़ता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर लॉक ऑल आइटम्स। ये जो लाइन है लास्ट फर्स्ट में जो लास्ट वर्ड है लॉक ऑल आइटम्स, ये आपको याद रखना है। ओके, कि कंजर्वेटिव 2PL में क्या है कि टू लॉक ऑल आइटम्स। स्ट्रिक्ट 2PL वेरिएशन है ये PL की। strict 2PL requires that in addition to locking being two-faced, all exclusive mode locks taken by the transaction must be held until that transaction commit। अब इसका रूल क्या है strict 2PL का कि all exclusive mode locks, जो exclusive mode locks है, exclusive locks है, वो उसको वो transaction complete होने तक रखने ही है। ऐसा नहीं कि इसका काम हो गया अब उसको अनलॉक कर दिया। जब तक वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता एक्सक्लूसिव लॉक्स उसको अप्लाई करके ही रखना है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, एक्सक्लूसिव लॉक। ओके, कौन सा लॉक अप्लाई करके रखना है जब तक वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता, तो एक्सक्लूसिव लॉक। ओके, दिस ट्रांजैक्शन इंश्योर्स दैट एनी डेटा रिटर्न by uncommitted transaction is locked in exclusive mode until the transaction commits, thus preventing any other transaction from reading the data। मीन्स तब तक दूसरा कोई ट्रांजैक्शन उसको रीड ही नहीं कर पाएगा ना, मीन्स कमिट होने के बाद ही उसकी वैल्यू, उस डेटा आइटम की वैल्यू बाकी ट्रांजैक्शन रीड कर पाएंगे। दैट इज द मीनिंग। ओके, एंड उसने जो एक्सक्लूसिव लॉक कब लगाएंगे, जब उसको राइट करना है, रीड एज वेल एज राइट करना है। तो जब उसने राइट की वैल्यू कमिट होगी तभी जाके इसका मतलब क्या है कि दूसरे ट्रांजैक्शन वो वैल्यू रीड कर पाएंगे। Now strict 2PL also avoids cascading rollback। strict 2PL also avoids cascading rollback, इसको भी याद रखना है। ऐसे जो सेंटेंस है उसको याद रखो MCQ के हिसाब से। ओके, now the third variation is rigorous 2PL। the variation of 2PL requires that all locks taken by transaction should be held until the transaction commits। इसका कहना क्या है rigorous का कि जब तक आपका ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को होल्ड करके रखो, चाहे वो शेयर्ड हो चाहे वो एक्सक्लूसिव हो। मींस यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट फॉर दैट। ओके, इन केस ऑफ रिगरस 2PL द ट्रांजैक्शन कैन बी इजीली सीरियलाइज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे कमिट। तो ऑटोमेटिकली आपको सीरियल शेड्यूल मिलेगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं कि हमको कंकरेंट शेड्यूल का आंसर करेक्ट ही मिले। ओके, अब ये वेरिएशंस क्यों है? The drawback of 2PL is that it has cascading rollback। 2PL टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक क्या है कि आंसर तो करेक्ट मिलता है बट कैस्केडिंग रोलबैक होता है कि T1 रोलबैक हुआ तो T2 होगा, T2 हुआ तो T3 होगा, लाइक दैट। वो अवॉइड करने के लिए क्या है ये वेरिएशंस। ओके, तो कंजर्वेटिव 2PL का कहना क्या है कि सारे ही डेटा आइटम्स को आपको एक साथ ही लॉक करना पड़ेगा जो आपके ट्रांजैक्शन में आपको लगने वाले हैं। गेटिंग? कंपल्सरी। अगर एक को भी लॉक नहीं मिल रहा है कंपैटिबिलिटी वो शेयर्ड एक्सक्लूसिव की वजह से, तो उसको वेट करना पड़ेगा और जब जो एक बचा है जिसको नहीं लॉक मिल रहा है उसको लॉक मिलेगा तब जाके वो सारे डेटा आइटम्स को लॉक कर पाएगा। देन सेकेंड वन इज स्ट्रिक्ट 2PL। स्ट्रिक्ट 2PL में क्या है कि ऑल द एक्सक्लूसिव मोड याद रखो कि जब तक वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता, कमिट होने तक आपको एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड करके ही रखने हैं, उसको अनलॉक नहीं करना है। और थर्ड क्या है? रिगरस में आपको सारे ही लॉक्स होल्ड करके रखने हैं जब तक वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता। ओके, मींस इन शॉर्ट क्या होगा, पहले T1 कमिट होगा, बाद में T2 कमिट होगा, बाद में T3 कमिट होगा, जैसे हमने देखा था कैस्केडलेस और रिकवरेबल शेड्यूल में। दैट इज द मीनिंग हियर। ओके, now next we will see upgrade and downgrade। upgrade and downgrade। so see here example is given, consider the following two transactions। here T1 is given, read A1, read A2 and read AN। okay, and write A1 means यहाँ पे क्या कर रहा है वो सबसे पहले read A1 को सबसे पहले रीड करता है,
बाद में सारे इसको रीड कर रहा है, A2 A3 A4 अप टू AN, और A1 को सबसे लास्ट में राइट कर रहा है. ओके, A1 को सबसे लास्ट में राइट कर रहा है. सो बोल्ड, इन बोल्ड लेटर आई हैव रिटन इट. नाउ T2 है, T2 क्या कर रहा है, रीड A1. T2 क्या कर रहा है, रीड A1, रीड करना है उसको. रीड A2 और डिस्प्ले A+2. T2 क्या कर रहा है, A1 और A2 को एडिशन कर रहा है. ओके, अब यहाँ पे क्या है, इफ वी इम्प्लीमेंट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, अगर हम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करें, देन T1 मस्ट लॉक एंड A1 इन एक्सक्लूसिव मोड. ऑफ कोर्स, if we are implementing two phase locking protocol or this locking protocol, we have to read as well as write A1. We have to read as well as write A1. Which lock we have to apply? Exclusive lock है ना. A1 को हमको read भी करना है, write भी करना है. So A1 पे हम exclusive lock लगाएंगे, और बाकी जो है read A2, read A3 up to read AN, उस पे shared lock अप्लाई करेंगे. ओके, बट A1 पे कौन सा लॉक जाएगा, शेयर्ड लॉक, सॉरी एक्सक्लूसिव लॉक जाएगा. A1 पे एक्सक्लूसिव लॉक हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको उसको रीड भी करना है एज वेल एज राइट भी करना है. सो बट T1 नीड्स एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A1 ओनली एट द एंड. लेकिन उसको एक्सक्लूसिव मोड की लॉक की जरूरत कब है, एट द एंड में है ना. तब तक रेडी है स्टार्टिंग में उसका. सो इफ वी राइट A1, so if T1 could initially lock A1 in shared mode and then later change the lock in exclusive, means वो क्या कर, ऐसा भी कर सकता है कि जब रीड A1 है तो उसको shared lock अप्लाई करेगा, और जब उसको राइट A1 करना है लास्ट में जाके, तब वो उस लॉक को अपग्रेड करेगा, यानी अब उसको एक्सक्लूसिव मोड में अप्लाई करेगा. ओके, पहले वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द एक्सक्लूसिव मोड ऑन A1, एक्सक्लूसिव लॉक A1 पे लगाने से अच्छा है वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसको राइट A1 बहुत बाद में करना है. सो व्हाट इट विल डू कि वो रीड A1 जो है रीड A1, तो उसको उसके ऊपर पहले शेयर्ड मोड लॉक लगाएगा. उसके बाद जब राइट A1 पे आएगा वो तब जाके उसको एक्सक्लूसिव लॉक लगाएगा. ओके, एंड so could change the lock in exclusive mode. We could get more concurrency since T1 and T2 could access A1 and A2 simultaneously. तो इसकी वजह से मीन्स क्या होगा, देखो इसकी वजह से होगा क्या, रीड पे अभी शेयर्ड लॉक अगर हमने अप्लाई किया तो T2 भी उसको रीड कर पाएगा. गेटिंग, T2 भी उसको रीड कर पाएगा, उसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो दैट इज द मेन पर्पस. And upgrade and downgrade means what? See here, upgrade means suppose we are converting the shared lock to exclusive lock. जैसे अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले shared lock अप्लाई किया था A1 पे और अभी exclusive lock अप्लाई कर रहे हैं, that is called as upgrade. Okay, और अगर हम exclusive lock से पहले exclusive lock था, अब उसको अगर हम shared lock में convert कर रहे हैं, then it is called as downgrade. ओके, तो अब अपग्रेड ध्यान रखो एक ही चीज की, जैसे A1 रीड A1 और राइट A1, ये एग्जांपल ध्यान में रखो कि रीड A1 पे हमने पहले शेयर्ड लॉक अप्लाई किया था, और राइट A1 जब आएगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव लॉक पे. सो शेयर्ड टू एक्सक्लूसिव इज कॉल्ड एज अपग्रेड. ओके, शेयर्ड टू एक्सक्लूसिव इज कॉल्ड एज अपग्रेड, और इसका अपोजिट डाउनग्रेड. एक ही याद रखना है कोई. सो अब इसको लिखते समय देखो हम कैसे लिखेंगे. ओके, इसको लिखते समय हम कैसे लिखेंगे देखो, लॉक एस A1 on A1 we have applied the shared lock. Okay, on the T2 side again on the A1 we have applied the shared lock. In T1 again we have applied shared lock on A2. Here in T2 also we have applied shared lock on A2. Then in T1 shared lock on A3, shared lock on A4. Okay, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, T2 में हमको सिर्फ रीड ही करना है ना, उसको T2 में क्या है, हमको सिर्फ रीड करना है. अब रीड हो गया तो उसको अनलॉक कर देंगे, अनलॉक A1 अनलॉक A2, काम हो गया है हमारा. ओके, अब यहाँ पे लॉक शेयर्ड लॉक ऑन AN इन T1. अब इसके बाद हमारा क्या है स्टेटमेंट, राइट A1 है. ओके, राइट A1, तो वहां पे हम एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करो ऐसे नहीं लिखेंगे, वी विल राइट डाउन हियर अपग्रेड A1. ओके,
A1 पे हमने देखो ऊपर क्या किया था, शेयर्ड लॉक अप्लाई किए थे. फर्स्ट लाइन देखो T1, हमने A1 पे क्या किया था, वी हैड अप्लाइड द शेयर्ड लॉक ऑन द A1. ओके, उसके बाद बाकी हमको जो शेयर्ड लॉक चाहिए वो सब अप्लाई कर दिए, बट मेन हमारा फोकस क्या है कि सीयर. यहाँ पे राइट A1 था लास्ट में, राइट A1. So here we will not write down that exclusive lock on A1. Here we will write down upgrade A1. Means upgrade A1 means उस पे already shared lock था. Now we have to convert it into the exclusive lock. Okay. So upgrade means conversion from shared to exclusive lock. Okay. So this was all about the locking protocols. Are you getting these locking protocols? Because next topic is now a little bit different technology. There are in some timestamp is a little bit different technology. So locking is a different technology, and timestamp, that is one next topic, that is a different technology. So are you getting the locking technology? Okay, so here in the next lecture I'll repeat again that locking technology. Okay, but now today I will give you the overall idea of timestamp, कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है timestamp. Okay, so locking technology जो है मैं next lecture में फिर से पूरा एक बार रिवाइज करूंगी. ओके, डोंट वरी. सो अब इसको हम देखते हैं कि क्या है. एटलीस्ट यू विल गेट आइडिया कि हाँ कुछ है टाइम से रिलेटेड. सो सी द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट टेक्निक. लॉकिंग अलग टेक्नोलॉजी है, टाइम स्टैम्प इज अलग. सो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल. सो सी टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल मीन्स क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिफोर एनी transaction will start the execution, the transaction has given a timestamp. Timestamp means कि वो transaction कितने बजे start हुआ, ये time उसको उसका time record किया जाता है. एक transaction suppose 5 o'clock start हुआ, एक system clock, और एक transaction है 5:05 से start हुआ. ओके, तो of course जो transaction पहले आया उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा. ओके, तो उसमें भी कुछ रूल्स है, बट दैट इज द मेन थिंग और मेन रूल कि जो ट्रांजैक्शन पहले आता है उसको पहले एग्जीक्यूशन चांस दिया जाता है. ये टेक्निक हमको यहाँ पे यूज करनी है. ओके, तो टाइम स्टैम्प मीन्स क्या है कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली कितने बजे स्टार्ट हुआ, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम स्टैम्प. ये उसका बेसिक मीनिंग है. ओके, सो विथ ईच ट्रांजैक्शन टीआई इन द सिस्टम we associate a unique fixed timestamp denoted by TS of TI. TS means timestamp and TI means no transaction, T1, T2, T3, whatever it is. Okay, so TS means timestamp. This timestamp is assigned timestamp is assigned by the database system. ये ध्यान रखो कि who will assign that timestamp? The database system. The database system will assign this timestamp. Before the transaction TI starts execution means जैसे वो एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट होता है उसके पहले उसको टाइम स्टैम्प दिया जाता है कि हाँ बस अब ये 5 बजे स्टार्ट हो रहा है, लाइक दैट. If a transaction TI has been assigned timestamp TS of TI and a new transaction TJ enters the system, then TS of TI less than TS of TJ. अब TS of TI को टाइम स्टैम्प दिया है 5 o'clock मीन्स उसका जस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन TJ आता है, ओके, तो जाहिर है टाइम्स TS of TI is less than always less than TS of TJ. जो पहले आता है उसका टाइम स्टैम्प कम रहेगा और जो बाद में आता है उसका टाइम स्टैम्प ज्यादा ही रहेगा. ओके, दैट इज द कॉमन थिंग. ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखो एमसीक्यू के हिसाब से. अगेन देयर आर टू सिंपल मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम कि टाइम स्टैम्प कैसे अप्लाई करना है. फॉर दैट द टू मेथड्स आर गिवन हियर. ओके, so first is use the value of the system clock as the timestamp. Okay, that is a transaction's timestamp is equal to the value of the clock when the transaction enters the system. Means सिस्टम का जो क्लॉक है वही कंसिडर किया जाएगा जब वो आपके सिस्टम में आएगा, मीन्स एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, इन शॉर्ट. सेकेंड क्या है, यूज ए लॉजिकल काउंटर. यूज ए लॉजिकल काउंटर दैट इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर ए न्यू टाइम स्टैम्प has been assigned. That is a transaction timestamp is equal to the value of the counter when transaction enter the system. Logical counter means जो आप I equal to I plus 1 लिखते हो,
या सी लैंग्वेज में I++ लिखते हैं, या हमारे DBMS में RDBMS में I कोलन इक्वल टू I+1, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल काउंटर। मींस पहले अगर TI आता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उसको 1 मिलेगा, बाद में TJ आता है तो उसको 2 मिलेगा, बाद में TK आता है तो उसको 3 मिलेगा, ओके। बाद में TM आता है, कोई भी ट्रांजैक्शन का नंबर कुछ भी हो, लेकिन जो पहले आता है उसको 1, जो बाद में आता है उसको 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, ओके। सो देयर आर 2 मेथड्स। The order of the transaction determine the serializability order. The order of the transaction determines the serializability order. Thus, if TS of TI is less than TS of TJ, then the system must ensure that the produced schedule is equivalent to serial schedule in which transaction TI appears before transaction TJ. If the timestamp of TI is less than timestamp of TJ, means what? TI will execute first, or TI will start first and then TJ will start first. Okay, that is the meaning. To implement this scheme, we associate with each data item Q 2 timestamp values. हर data item के लिए 2 timestamp values रहती है, हर data item के लिए. Okay, now here it is Q is considered. Data item Q is considered here. अब देखो कौन सी है? W timestamp of Q. W timestamp of Q. It denotes the largest timestamp of any transaction that execute write queue successfully. Means देखो अब Q डेटा आइटम जो है वो क्या जरूरी है क्या कि सिर्फ T1 में ही रहेगा? नहीं, वो T1 में भी रहेगा, T2 में भी रहेगा, T5 में भी रहेगा डेटा आइटम Q जो राइट होता है, राइट क्योंकि राइट क्यू रहता है, राइट इन ब्रैकेट क्यू, ऐसा T1 में भी रहेगा, T2 में भी रहेगा, T5 में भी रहेगा। ओके, सो राइट क्यू में क्या होता है, एक क्यू डेटा आइटम के लिए सिर्फ एक ही राइट की वैल्यू होती है, एक ही जो बार बार अपडेट होते जाती है, जैसे हमने हार्ड डिस्क में देखा था, है ना। राइट की वैल्यू T1 ने की 900, T2 ने की तो 1000, तो 900 चली जाती है, 1000 आती है। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है, राइट क्यू के लिए राइट की वैल्यू एक ही होती है, और वो अपडेट कौन सी होती है, जो हाईएस्ट मींस अभी T1 ने राइट क्यू किया तो कितने बजे T1 ने राइट किया 5 बजे, T2 ने कितने बजे राइट किया क्यू की वैल्यू 5.5 को, मींस 5:05 से, तो 5 o'clock निकल जाएगा, 5.5 आएगा, पॉइंट मींस 5:05। अगर T5 ट्रांजैक्शन ने राइट की क्यू की वैल्यू एट 5:10 से, तो उस राइट क्यू की उस वेरिएबल में 5:10 की वैल्यू जाएगी, मींस वैल्यू एक ही रहती है, बट अभी तक की वो हाईएस्ट वैल्यू होती है जितने बजे वो राइट की थी वैल्यू क्यू की। ऐसा हर डेटा आइटम के लिए होता है। एंड रीड क्यू डिनोट्स द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूट्स रीड क्यू सक्सेसफुली, लेकिन अगर वो सक्सेसफुली होता है तो ही, अगर रोल बैक हुआ तो नहीं। ओके, जैसे रीड भी कैसे, अब क्यू के लिए रीड क्यू रहेगा, ओके, आर टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू, इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, अगर रीड T1 ने रीड किया 6 o'clock सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो 6 की वैल्यू जाएगी, उसके बाद 6:02 के बाद T2 ने रीड किया तो वो 6 वाली वैल्यू चली जाएगी, वहां पे अपडेट हो जाएगा 6:05, तो लार्जेस्ट वैल्यू जहां रीड क्यू सक्सेसफुली होता है। ओके, द टाइम स्टैम्प आर अपडेटेड व्हेनेवर ए न्यू रीड क्यू और राइट क्यू इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। सो एक्चुअली तो ये अभी तो बेसिक कंसेप्ट है टाइम स्टैम्प की। सो देयर आर सम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स है दैट वी विल सी टुमारो। ओके, तो ये फाइल मैं देखती हूँ, आज ही पॉसिबल हुआ तो अपलोड कर देती हूँ, मीन्स आपको पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा। ये भी चैप्टर ऐसा है कि आपको आज के आज पढ़ो तो ध्यान में रहेगा। ओके, वेदर यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट।